and in this lecture we will discuss about sorting algorithm. The algorithm is selection sort. First of all, let us have some brief introduction about sorting. What is a sorting problem? Sort a list of values starting from lowest to highest or from highest to lowest. Sort means to arrange. Arranging the data in some specific order, either alphabetically or numerically, in ascending or descending order, is termed as sorting. This sorting is a very common problem in our daily life. There are many situations when we have to perform sorting, like list of exam scores, words of dictionary in alphabetical order, similarly student names listed alphabetically, similarly student records sorted by IDs. In the same manner, you can see that in telephone dictionary, the names are also sorted alphabetically. And there are many situations when we have to perform sorting, like there are solved answer sheets of the students, and we have to sort. So we sort those roll number wise. So there are multiple problems in our practical life when we have to perform sorting. This sorting problem may be solved using different sorting algorithms. There are multiple algorithms. Every algorithm uses some different technique to sort out the data. So generally we are given a list of records that have some key, and these keys are used to define an ordering of the items in the list. आमतौर पे जो sorting प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे पास, उसमें रिकॉर्ड्स होते हैं जिनको हमने सॉर्ट आउट करना होता है. कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जिनके साथ कीज होती हैं और उन कीज के मुताबिक हमें सॉर्टिंग परफॉर्म करना होती है. लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स विदाउट की होते हैं और फिर उस रिकॉर्ड में से कोई एक डाटा आइटम की बेस पे हमने सॉर्टिंग परफॉर्म करनी होती है. So whatever is the mechanism, we have to arrange whole the data in order to perform the sorting. There are different algorithms. Every sorting algorithm have its own complexity, have different mechanism, different strategies to sort out the data. But there are some algorithms that have same execution time. So we are given n records to sort, and there are a number of simple sorting algorithms whose worst and average case performance is quadratic, big O of n square. So there are three algorithms: selection sort, insertion sort, and bubble sort. All these are the algorithms and termed as quadratic sorting algorithms, as their complexity or efficiency, worst case and average case, is big O of n square. All these are the algorithms that have same execution time. Their sorting mechanism is little bit different from each other, but when we compute the efficiency or complexity of the algorithms, then same complexity is the result. So let us start discussing selection sort. What we have to do in selection sort? First of all, we are given a problem, and the problem is that we are given an array of 6 integers that we want to sort from smallest to largest. So this is an array of elements, and we have to perform ascending sort. Ascending means we have to perform sorting from smallest to largest. We have to arrange the elements in an order in which the smallest element will come first and the largest element will be in the end.
So this is the array, and this array has different values, and these are the indexes of the values. This is the element that is at first index, second index, third, and as there are 6 elements, so the index of last element is 5. These are the values that are stored in the array. So the first value, the value that is stored on first index is 40. The value that is stored in second index is 20. Similarly, value stored in third index is 50, and so on. So all these are the values. And now we have to arrange or sort these in ascending order. So what the algorithm says, the selection sort algorithm says that we have to find out the smallest element in the whole array. First of all, we will find out the smallest element in the array. Then this is the smallest element. Then what we will do in next step, we will swap the smallest entry with the first entry. ये जो हमारे पास smallest element है, इससे हम क्या करेंगे, इसको स्वैप कर देंगे फर्स्ट एलिमेंट के साथ. फर्स्ट लोकेशन पे जो एलिमेंट मौजूद है, दिस एलिमेंट विल बी स्वैप्ड विद द स्मॉलेस्ट एलिमेंट दैट वी हैव फाइंड आउट वेरी रिसेंटली. इन दोनों को हम इंटरचेंज कर देंगे, स्वैप कर देंगे. आफ्टर स्वैपिंग द कंडीशन विल बिकम और द सिचुएशन विल बिकम दिस. बाकी सारे एलिमेंट्स अपनी जगह पे मौजूद है. स्मॉलेस्ट एलिमेंट फर्स्ट लोकेशन पे आ गया और फर्स्ट लोकेशन वाला एलिमेंट स्मॉलेस्ट एलिमेंट की जगह पे चला गया. तो नाउ यू कैन सी that in the whole array the smallest element has reached at its proper position. स्वैपिंग परफॉर्म करने के बाद जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट लोकेशन पे आ जाना चाहिए, जो कि आ चुका है. सो आफ्टर परफॉर्मिंग द स्वैपिंग the smallest element has reached its position. So after pass 1, the one element has reached its position. This is the sorted side and this is unsorted side. So the elements or the bar that is white is sorted and the bar that is bars which are red are unsorted. So the view of sorted part of the array is like this. Now what we have to do, we have to consider the remaining elements. पूरी अरे में से हमारे पास जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट था वो अपनी लोकेशन पे पहुंच चुका. अब हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे. नाउ द अरे अंडर कंसीडरेशन विल कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स. इनिशियली वी हैड 6 एलिमेंट्स. 6 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट अपनी प्रॉपर पोजीशन पे पहुंच चुका. तो अब हमारे पास जो अनसॉर्टेड एलिमेंट्स हैं वो 5 हैं. तो अब हमने 5 एलिमेंट की अरे को कंसीडर करना है. 5 एलिमेंट की अरे में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इंडेक्स 1 पे है और पूरी अरे में से हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट जब फाइंड आउट करेंगे तो वो हमें मिला इंडेक्स 6 पे. अब हम क्या करेंगे कि जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट हुआ है उसको अरे की फर्स्ट लोकेशन वाले एलिमेंट के साथ स्वैप कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे. तो ये जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है इसको हम फर्स्ट पोजीशन पे ले आएंगे और फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट जो ये था वो स्मॉलेस्ट पोजीशन वाले एलिमेंट पे चला जाएगा. तो ये हमने स्वैपिंग परफॉर्म कर दी. नाउ यू कैन सी कि इन 5 एलिमेंट की अरे में से जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट था जिसकी वैल्यू 15 थी, इट हैज़ रीच्ड इट्स पोजीशन. ये 5 एलिमेंट्स में से जो सबसे स्मॉलेस्ट था वो सबसे स्टार्ट में आ चुका है. Now at the end of second pass, the second element has reached its position. So after swapping, the condition of the array has become like this,
This is the sorted array and this is unsorted side. This is sorted side and this is unsorted side. So we have increased the size of the sorted side by one element. यानी एक एक करके हम sorted array में जो है वो इंक्रीमेंट कर रहे हैं. Now, the array under consideration consists of 4 elements. If we move back, तो अब यहाँ देखें कि अब हमारे पास जो array है उसमें 4 elements रह गए हैं. इसमें से हमने again we will find out the smallest. This one is the smallest. बाकी सारी सबकी values ज़्यादा हैं लेकिन इसकी value कम है. That's why we have find out that this is the smallest. तो ये सबसे छोटा है, इसको हमने find out किया. Now what we will do? We will swap it with the first element. Array under consideration consists of 4 elements. इसमें से ये वाला जो एलिमेंट है वो फर्स्ट लोकेशन पे है. तो इस फर्स्ट लोकेशन वाले एलिमेंट को हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट के साथ स्वैप कर देंगे. तो जब स्वैपिंग परफॉर्म होगी, ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, और जब स्वैपिंग होगी तो उसको हमने इस एलिमेंट को इसके साथ स्वैप कर दिया. नाउ आफ्टर स्वैपिंग, this is the sorted and this is unsorted side. Now you can see that at the end of every pass, one element reaches its proper position. अब हमारे पास जो array बच गई है उसमें 3 elements हैं और 3 elements में से हम जो है smallest find out करेंगे. So this one is the smallest. इस smallest को हमने बैक पे हम जाते हैं, ये स्मॉलेस्ट है. स्मॉलेस्ट को हम फर्स्ट अरे अंडर कंसीडरेशन के फर्स्ट एलिमेंट से स्वैप करेंगे तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे. ये इंटरचेंज हो गए और ये अपनी प्रॉपर पोजीशन पे आ गया. सो द प्रोसेस keeps adding one more number to the sorted side. The sorted side has the smallest numbers arranged from small to large. You can see that this sorted side है, इसमें we move from small to large. और ये हमारे पास अनसॉर्टेड साइड रह गई है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं. अब we will need only one more pass. अब उसमें हम क्या करेंगे कि इन दोनों में से हम स्मॉलेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज दिस, और फिर इसको हम इंटरचेंज कर देंगे. जब हम इंटरचेंज करेंगे तो दोनों एलिमेंट्स अब अपनी पोजीशन पे चले जाएंगे. सो यू कैन सी दैट दिस has reached its position and the one element that was left has finally ultimately reached its position. So you can see that all these elements are in ascending order. So we can stop when the unsorted side has just one number. अब देखिए अनसॉर्टेड साइड में सिर्फ एक नंबर बच गया है, तो अब हमें मजीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दिस एलिमेंट इज इट्स प्रॉपर पोजीशन. बाकी सारे तो हमने उनकी पोजीशन पे मूव कर दिए थे. तो अब वो जो एक बच गया है वो भी अब अपनी प्रॉपर पोजीशन पे है. So we will stop executing the algorithm when there is one number left, since that number must be the largest number. So the array is now sorted. You can see पूरी array sorted है. We repeatedly selected the smallest element and moved this element to the front of the unsorted side. We simply done. क्या हमने किया कि हम पूरी अरे में से स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करते थे और उसको अरे के पहले एलिमेंट के साथ स्वैप करते जाते थे. We continued the procedure until the whole array has been sorted. One thing to keep in mind is that कि एक दफ़ा जब एक एलिमेंट अपनी प्रॉपर पोजीशन पे पहुंच जाता है तो उसको हम नेक्स्ट टाइम कंसीडर नहीं करते, तो हमारी पूरी अरे में से वो एलिमेंट एक्सक्लूड हो जाता है.
तो हर दफ़ा जब एक एलिमेंट अपनी प्रॉपर पोजीशन पे पहुंचेगा तो हमारी अरे का साइज रिड्यूस हो जाएगा. So next time the array under consideration will consist of number of elements that will be equal to n minus 1. हर दफ़ा एक एलिमेंट जो है वो अरे के साइज में से रिड्यूस होता जाएगा, यानी अरे का साइज जो है वो रिड्यूस होता जाएगा every time when one element has reached its position. Now we discuss the algorithm or pseudocode of selection sort. So this selection sort is the procedure. एक you can say कि function है selection sort का, और इसमें these are the arguments, item data, मतलब हमारे पास array है और size t, यानी कि n साइज है अरे का, और डेटा वो अरे है जिसको हमने सॉर्ट आउट करना है. तो क्या है यहाँ पे कि हमारे पास ये सारा सूडो कोड एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ वेरिएबल्स होने चाहिए. स्मॉलेस्ट हमने वेरिएबल लिया जिसमें हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करके उसका इंडेक्स स्टोर करना है. इसी तरह से हमारे पास वेरिएबल होंगे आई और जे, और ये आई और जे जो हैं ये आपके लूप काउंटर वेरिएबल्स हैं. साइज टी इज सिंपल डाटा टाइप जो कि आप आमतौर पे इंटीजर लेते हैं. इसी तरह से आइटम टेम्प मीन्स ये हमारी अरे है. जैसे ये अरे थी ना, इनिशियल अरे जिसमें डाटा है, तो हम जब हम स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे तो हमें एक टेम्प वेरिएबल, टेम्परेरी वेरिएबल भी चाहिए होगा. तो ये सिंपल सा वेरिएबल है जो कि इंटीजर डाटा टाइप का होगा. अब वी हैव टू पुट सम कंडीशन कि अगर हमारे पास n यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अरे आर लेस देन 2, यानी कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट है, लेस देन 2 का मतलब तो एक ही होता है ना, तो अगर हमारे पास अरे में एक ही एलिमेंट है तो वी विल रिटर्न, मतलब वी हैव टू डू नथिंग, यानी कि एक एलिमेंट है तो वो तो सॉर्टेड ही होगा ना, एक एलिमेंट को तो सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है. So if number of elements are less than 2, then we have to do nothing. We simply will return. But if this condition is false, means number of elements are 2 or greater than 2, then we will have to perform sorting. किस तरह से आपने sorting perform करनी है? You will use a loop from 0 to n minus 1. यानी कि जितने एलिमेंट्स हैं या आपका आउटर लूप उतने जो है वो n-1 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा. अगर आपका 6 एलिमेंट्स हैं तो ये 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, और अगर आपके 10 एलिमेंट्स हैं तो ये 9 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा. 9 टाइम्स n-1 टाइम्स इसलिए कि वो जो लास्ट वाला एलिमेंट बच जाता है वो अल्टीमेटली अपनी पोजीशन पे पहुंच चुका होता है, तो उसके लिए आपको कोई आइट्रेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती. दैट्स वाई ये वाला लूप n-1 टाइम्स चलेगा. अब इस लूप के अंदर हमने क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ अरे. अब जो अनसॉर्टेड अरे है हमारे पास, every time the size of unsorted array will be reduced by 1, तो वो जो unsorted array है उसमें से हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है. तो हम क्या कहते हैं कि अरे की जो फर्स्ट लोकेशन है आई, और जो उसकी फर्स्ट लोकेशन होगी हम कहते हैं वहां पे जो एलिमेंट है वो सपोज कर लेते हैं कि वो स्मॉलेस्ट है. दैट्स व्हाई वी हैव असाइंड आई टू स्मॉलेस्ट. नाउ वी use another loop from j is equal to I plus 1, j less than n, और j plus plus. अब क्या है कि ये j plus 1 हमने क्यों यूज किया? As already I have told you that at the end of every iteration of this outer loop, one element has reached its position. तो अब हमने जो array under consideration होगी उसमें एक एलिमेंट कम होता जाएगा, तो उसको करने के लिए आपने i+1 यूज किया है. यानी कि पहले आपके पास
अरे अंडर कंसिडरेशन अनसॉर्टेड अरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा था, फिर वो 1 से स्टार्ट होगा, 0 प्लस 1 1 से स्टार्ट होगा, फिर 0 प्लस 2 सॉरी फिर 1 प्लस 1 2 से स्टार्ट होगा, देन 2 प्लस 1 3 से स्टार्ट होगा एंड सो ऑन. नाउ इफ डाटा यानी अरे का जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है इज ग्रेटर देन डाटा ऑफ जी, यानी कि अरे का जो स्मॉलेस्ट आई हमारे पास था अगर वो वैल्यू ग्रेटर है डेटा ऑफ जे से, यानी कि वो जो हमने पहला एलिमेंट लिया था उसको अरे के बाकी सारे एलिमेंट से कंपेयर करते जाएंगे जैसे जैसे जे की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी. तो अगर वो वैल्यू ग्रेटर थी इससे, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो जे लोकेशन के ऊपर एलिमेंट है वो स्मॉलेस्ट है. तो दैट्स व्हाई वी विल असाइन द वैल्यू ऑफ जे टू स्मॉलेस्ट. तो अब हम क्या करेंगे कि ये हमने स्मॉलेस्ट को जे दे दिया, तो अब स्मॉलेस्ट एलिमेंट की लोकेशन हमारे पास आ जाएगी व्हेन दिस लूप विल बी एंडेड. पूरा लूप जब इनर लूप एग्जीक्यूट हो चुका होगा तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, स्मॉलेस्ट इंडेक्स होगा वो स्मॉलेस्ट के अंदर आ चुका होगा जे की जो भी वैल्यू होगी. नाउ वी हैव टू स्वैप. ये वाला जो पार्ट है ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट कर रहा है और इस पार्ट के थ्रू अब हम स्वैपिंग करेंगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट की अरे के फर्स्ट लोकेशन वाले एलिमेंट के साथ. सो वी हैव टेम्परेरी वेरिएबल, इनिशियली डाटा ऑफ आई को आप टेम्परेरी में असाइन कर दें, देन डाटा ऑफ आई को डाटा ऑफ स्मॉलेस्ट, वो जो स्मॉलेस्ट लोकेशन वाला एलिमेंट था वो दे दें, और स्मॉलेस्ट वाली लोकेशन पे टेम्परेरी यानी कि वो जो फर्स्ट लोकेशन वाला एलिमेंट था. तो इस तरह से आपने स्वैपिंग परफॉर्म की. तो यूजिंग दीज टू लूप्स you can perform the whole selection sort. So selection sort analysis. Analysis means we have to find out the runtime or execution time of algorithm. Here you can see, as already we have discussed, that in order to find out the execution time of algorithm, we simply count the basic operations. So here we will count. You can see from here that the two loops are being used. This is the outer loop, and this loop will execute how many times? N times. Or you can say n minus 1 times. This loop will be executed n minus 1 times. So keep in mind that this will be executed n minus 1 times. तो n minus 1 टाइम चलेगा तो उसमें एक ही ऑपरेशन है, एक ही बेसिक ऑपरेशन है जो कि असाइनमेंट का है. अब लूप n माइनस 1 टाइम चलेगा तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ये जो है जो ऑपरेशन है वो भी n माइनस 1 होगा. तो आउटर लूप कितनी दफा एग्जीक्यूट हुआ? n माइनस 1 टाइम्स. तो बिग ओ ऑफ, तो उसकी जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी वो क्या होगी? बिग ओ ऑफ n. अब देखें कि हमारे पास आउटर लूप को जब हमने एनालाइज किया तो वो कितनी दफा एग्जीक्यूट हुआ? n माइनस 1 टाइम्स. तो हमारे पास जो फंक्शन आया वो क्या? लीनियर फंक्शन n माइनस 1. अब होता क्या है कि जब हम एनालिसिस करते हैं और हमारे पास जो फंक्शन आता है तो हम उस फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं. किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं कि जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं. अब n माइनस 1 में 1 कांस्टेंट है, उसको हम इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? n. तो इसका मतलब क्या है कि आउटर लूप की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या? बिग O ऑफ n, यानी मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी. नेक्स्ट इनर लूप को हम देखते हैं. ये हमारे पास इनर लूप है. ये कितनी दफा एग्जीक्यूट होगा? ये भी n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा क्योंकि जे जो है वो 1 टाइम जे i+1 से स्टार्ट हो रहा है
तो हर दफ़ा जब i की वैल्यू चेंज होगी तो j की भी वैल्यू चेंज होगी, लेकिन इसकी n इटरेशंस के लिए ये भी n टाइम्स ही एग्ज़ीक्यूट होगा।